and today will be just an introduction of analysis phase. By introduction will contain very vital information, very key information. Based on that, entire analysis phase will be discussed. So it's very important to understand. And any point of time, any of you, all the participants have any problem, they can raise question. I will stop over there, discuss about it, and clarify all those points, because no doubt should remain in analysis phase. Okay, it's very, very important. And we are going to close a proper gate for analysis phase also. And for you, you have to practically apply it in your projects that we are going to review. Okay, so let's move into the program. So I'm going to discuss today what, if the time permit, I'm going to cover the entire agenda. Fundamental of analysis phase, what is the fundamental involved in that? What is the advanced statistics involved in analysis phase? You have gone through basic stats. Are you aware? Anybody can tell we have gone into basic stats. Are you aware, right? There's 3 questions. Anybody can explain what are the 3 questions? This is basic stats. Anybody can explain? There were 3 fundamental questions. This we cover under basic stats. We already done for measure phase. Now we are moving to advanced statistics. So we'll cover some other aspect or dimension of the statistics which will be used in the analysis phase. Okay. So can anybody explain? Mean, medium. So this is central tendency, mean, median, mode, mean, right? Median, mode. Yes. Yeah. And there is a second question that we discussed is spread. Okay. So spread mein there were 3 indicators. Yes. Anybody can explain? Yeah, somebody is writing. Let me see. Variance, standard deviation. Very correct. So, and what is the third question? Which is basic stat, right? This is not an agenda. I'm just saying, you know what we discussed. Somebody can think is statistics to hum discuss kar chuke hain, then why we are again putting that in agenda. So just to make a difference, that was a basic stats. Now we're going to move into advanced stats. Basic stat, we have already discussed the 3 fundamental questions. And what is the third question? Are you aware? Shape. Yeah, shape. Yeah, Narendra, very correct. So shape was the main agenda. That was the in the 3 fundamental question. And shape covers all kind of distribution, shape and all. So this is the basic stat, but that's not the agenda. Okay, we are going to talk about the advanced statistics. Achha, what is the meaning of advanced? Anybody can explain what is the meaning of advanced? Anything, advanced SPC, advanced statistics का मतलब क्या होता है? मतलब advanced word is widely used, correct? It's a widely used phenomena. Okay. So advanced से क्या? What goes into your mind? I'm talking about this particular word, okay? Advanced word बहुत जगह सुना होगा ना? Basic and advanced. Advanced course. More technical and more detailed. More technical and more detailed. Okay. Some specific tool will be there in advanced statistics. Some specific formula or tools like that. Okay. So in generally, the advanced actually meaning is where the utility enhances. जिसका एप्लीकेशन और यूटिलिटी बढ़ता जाता है उसको हम एडवांस बोलते हैं. ओके, सो अब जो आप पढ़ोगे उसकी हाई यूटिलिटी है, मींस द एप्लीकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इससे एप्लीकेबल स्टैटिस्टिक्स इन योर डेली लाइफ, मतलब अब आपका एनालिसिस में डेली यूज होगा. ये एडवांस लेवल पे पहुंच गया. इट मींस द यूटिलिटी हैज एनहांस्ड. लोगों को एडवांस का मतलब लगता है बहुत मुश्किल हो गया है, बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया है. सो द मोमेंट वर्ड एडवांस कम्स इन देयर माइंड, इट लुक्स मोर कॉम्प्लेक्स. डिटेल में तो देखो बेसिक स्टैट्स भी पढ़नी पड़ेगी, एडवांस स्टैटिस्टिक्स भी पढ़नी पड़ेगी. डिटेल इज ऑलवेज रिक्वायर्ड. वी कैन नॉट डू एनीथिंग ऑन पेरीफेरी, राइट? पेरीफेरल चीजें नहीं कर सकते, सरफेस पे नहीं कर सकते, डिटेल में जाना पड़ेगा. चाहे एडवांस स्टैटिस्टिक्स पढ़ें चाहे हम बेसिक स्टैट्स पढ़ें. बट एडवांस में फायदा क्या, आपका यूटिलिटी एनहांस हो जाती है. इट्स अ गुड एडवांटेज. मतलब आप अप्लाई ज्यादा कर सकते हो. जिस चीज का एप्लीकेशन कम होता जाता है वो बेसिक चीजें होती हैं, राइट? कि बेसिक आपने समझ लिया बट ज्यादा आप अप्लाई नहीं कर सकते. बट हियर नाउ यू आर गोइंग टू दैट मच अंडरस्टैंडिंग
that it has a better understanding, or you can say advanced understanding to apply it in a better way. So आपको advanced statistics का मतलब complexity से नहीं link करना है. Is it okay, sir? Is that clear? Advanced does not mean complex, because this goes into our mind sometimes. Okay, so let's move to this. So we are going to have advanced statistics as one of the agenda. Then we have central limit theorem. Forget about that, what it is. हम लोग ये discuss करेंगे in a most practical way as we are going to advanced statistics. So central limit theorem को हम practically कैसे apply कर सकते हैं? This is going to talk about. Then we have risk and confidence level. This is a very very important subject because पूरा analysis के ऊपर depend करेगा. और मिनी टैब का भी रोल अब एनहांस हो जाएगा. सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट मिनी टैब एप्लीकेशन टुडे. आज से शुरू हो जाएगा. ओके, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू यूज इट रेगुलरली. सो ये हमारा एजेंडा है जो आज चलेगा. यस सर. यस, ओके. सो क्या होगा? फंडामेंटल समझेंगे आज एनालिसिस का. कुछ स्टैटिस्टिक्स के फंडामेंटल समझेंगे, एडवांस स्टैटिस्टिक्स कैसे अप्लाई है. एक थ्योरम समझेंगे जो जिसका प्रैक्टिकल यूसेज क्या है. थ्योरम्स आर प्रूवन, राइट? वी डोंट हैव टू प्रूव इट. सो हमें देखना है उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं इन आवर प्रॉब्लम सॉल्विंग. और रिस्क एंड कॉन्फिडेंस लेवल का कॉन्सेप्ट समझेंगे जिसके बेसिस पे सारे डिसीजन हमारे आगे डिपेंड करेंगे. सो ये आज का क्रिटिकल डे है. इससे अगर ये बेस क्लियर हो गया तो आप आगे जाके यू कैन डू इट वेरी वेल इन द एनालिसिस फेज. सो लेट्स गो इनटू द डिटेल ऑफ दैट. Now we are moving to these kind of DMAC. Define में आपने कुछ काम कर लिया होगा, measure में कर लिया होगा. Now we are entering into the analysis phase. So ये हमेशा आपको याद रखना है. Never go into a tool and get stuck on a particular tool. Always remember कि आपका define phase में जो क्या क्या काम कर चुके हैं, measure में क्या हम कर चुके हैं, और analysis में हमें क्या करना है. We are waiting for what? Okay, we should always remember this. We should not de-link ourselves from the flow. You understand? एक प्रोजेक्ट का फ्लो चल रहा होता है, उससे कभी de-link नहीं करना है. क्या है, एनालिसिस फेज में बहुत सारे डिस्कशन होंगे, टूल होंगे, तो आपको रास्ता नहीं भटकना है. योर फ्लो हैज टू बी देयर, राइट? जो हमने डिफाइन मेजर से फ्लो पकड़ा हुआ है, प्रोजेक्ट्स को लेके चल रहे हैं, उसी हिसाब से यू हैव टू टेक द फ्लो. करेक्ट? सो आज हम पहले ये डिस्कस करेंगे कि हम एनालिसिस फेज में कैसे पहुंचे हैं, पहले क्या कर चुके हैं, एंड व्हाट इज द लिंक एंड फ्लो. ओके, so we are going to talk on that. So let's go and first review that part. So I'm going to discuss the discipline of, okay. I'm going to discuss about discipline of Six Sigma. So if you remember what we have discussed define phase, okay? We have gone through measure phase. Now we are entering into the analysis phase, and there will be subsequent classes for improvement and control phase. So there is a DMAC principle we are going to follow, correct? Everybody knows. Every time I will remind you the discipline, okay? Follow the discipline. Do not jump. Everything is a gate system. जब तक डिफाइन नहीं हुआ मेजर में हम कुछ नहीं कर सकते. जब तक मेजर फेज कंप्लीट नहीं हुआ एनालिसिस में एंटर नहीं कर सकते. सो एवरीवन, सो देयर इज ए डीमैक सिस्टम. डीमैक सिस्टम में हमने अभी तक क्या किया है? लेट्स अंडरस्टैंड. कैच द फ्लो एंड विद द सेम मोमेंटम एंटर इनटू द एनालिसिस फेज. इज इट ओके? डीमैक का मोमेंटम लेके एनालिसिस फेज में हमें एंटर करना है ताकि आपको रिफ्रेश हो जाए हम लोग कैसे एंटर किया. सो डिफाइन में हमने क्या किया? बिग वाई लिया है. Anybody can explain what is big Y? Correct? Big Y क्या होता है? जल्दी करते हैं ना? कोई भी yeah. Yes, could be. Yeah. Management pain. Exactly. It's a management related problem, organization related issues, business related problem. Rework आ रहा है, वारंटी आ रहा है, कस्टमर कंप्लेन आ रही है, प्रॉफिट नहीं अचीव हो रहा है, इन्वेंट्री ज्यादा पड़ी हुई है. ये सब जो मैनेजमेंट कभी टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं डिफाइन करेगा, लाइक सिक्स सिग्मा लेवल ऑफ प्रॉब्लम ऐसा नहीं बोलेगा. वो कहेगा मुझे एक बिजनेस पेन है, एंड जेंटलमैन यू आर ट्रेन्ड, यू आर ब्लैक बेल्ट, यू कैन सॉल्व द इश्यूज, सो प्लीज टेक दोस प्रोजेक्ट एंड रिजॉल्व इट. करेक्ट? सो पहले बिग वाई पकड़ना है.
सो बिग वाई गलत नहीं होना चाहिए, मतलब पेन एरिया सही सेलेक्ट करना है, दैट इज द फर्स्ट आइडिया. इज इट ओके? हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, सो आई एम जस्ट कीप ऑन मूविंग, राइट? आई विल कीप ऑन मूविंग. अच्छा, बिग वाई से क्या करना है हमें लेके? क्या बिग वाई पे बैठना नहीं है हमें, करेक्ट? मैनेजमेंट ने प्रॉब्लम बता दिया, उसी को लेके नहीं बैठना है. क्या करना है उसको फर्दर? Yes, people are writing chat also. जो लोग नहीं बोल रहे, मैं चैट में है. स्मॉल वाई पे यार, तो या विशाल वेरी करेक्ट. सो स्मॉल वाई को हम टेक्निकल वाई बोल रहे हैं. कई बार क्या होता है, स्मॉल वाई होता है ब्रेक डाउन दी प्रॉब्लम. जो बड़ी प्रॉब्लम है उसको छोटी प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि पेन बड़ा नहीं होता है. सोर्स ऑफ पेन एक जगह होता है, वो दिखता बड़ा है, फैल जाता है, ठीक है ना? एक डिफेक्ट होगा लाइन पे, बट वो कस्टमर पे जाके बहुत बड़ी आवाज बन जाता है. इट बिकम्स अ वेरी बिग वॉइस, and to handle a big voice become very big pain for the organization industry. issue छोटा सा होगा, issue बहुत ही छोटा सा होगा. जैसे यूएस में आपने सुना है, something happened, there are rallies going on. The issue है how to handle a issue. Allow for, I am already recording, right? Don't worry, I will share that recording as I have shared for MS sales. Because I have to edit also, because the बीच में issues होते हैं, we have to, I cut it down. Okay, so we are recording. ठीक है कुलबीर, so don't worry. And I have shared last time also. If you have not got that, or you did not receive that link, so please contact me. I will share that. Okay, let's come back again. So हमारा काम होता है प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन कर लेना. So US में इशू वो छोटा सा हुआ, how to handle a particular case when a fraud currency has been say. वो इशू छोटा था, बट अगर उसका आगे का इफेक्ट देखेंगे तो इतना बड़ा इफेक्ट भी हो सकता है कि nobody can handle it. So हम लोग बिग वाई पे काम नहीं करते, हम लोग टेक वाई पे काम करते हैं. So this is called technical वाई. Is it okay? अब ये कैसे पहुंचेंगे डिफेक्ट लेवल पे, जो प्रोसेस में डिफेक्ट होता है. So we can use 3 level Pareto. This one approach. Okay. What is the second approach? 5Y analysis we can do. 5Y भी क्या होता है, पेनिट्रेट करता है, बड़ी प्रॉब्लम को छोटा प्रॉब्लम बनाता है, YY करके. ओके, कोई तीसरा टूल भी बता सकते हैं जो हमने डिस्कस किया, जिससे प्रॉब्लम को समझना आसान होता है, where we can understand the problem clearly. Yes, any other tool for narrowing down? Yes, 5W2H, Vishal, very correct. So next is 5W2H. So it's a very clear understanding that these are the tools, and you have to use specific tool. Okay, there is nothing like unlimited tool or confusion about it. It's very clear spoon feeding. ये 3 tool use करो, big Y को, tech Y को narrow down करो. That's your objective. Okay, और यही दिखाना है और कुछ नहीं दिखाना. Move to next. अब जब टेक्निकल वाई पकड़ लिया तो आपसे सवाल होगा, ये प्रोजेक्ट क्यों लिया, ये डिफेक्ट, why do you want to resolve this defect? Is it critical to quality? It is critical to cost. It is critical to delivery. It is critical to satisfaction. कुछ कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए प्रोजेक्ट करना पड़ता है. कंप्लेन नंबर बहुत कम है, बट 2 कंप्लेन भी पूरे बिजनेस को खराब कर सकते हैं, राइट? इट कैन डैमेज, टार्निश अवर इमेज, ब्रांड वैल्यू. सो हमें लेना पड़ता है. कुछ केस में इन हाउस रिजेक्शंस बहुत आई है, कस्टमर तक नहीं जा रहा है, बट वी हैव टू टेक बिकॉज ए क्वालिटी इशू. समवेयर द कॉस्ट इज हाई एंड आई हैव टू टेक. Somewhere it is a combination of the two, so they are criticality of the project. Something is not critical, we are not going to take it. Then what is next? That will happen. Tech Y से एक important चीज निकलेगी, CTP. So what is CTP? Anybody can explain? CTP क्या है? Critical to process. Critical to process. Very correct. इसका मतलब ये वो प्रोसेस है जो मुझे इम्प्रूव करना है, जो डिफेक्ट जनरेट कर रहा है. रीजन नहीं मालूम, बट आई नीड टू इम्प्रूव वेल्डिंग प्रोसेस, आई नीड टू इम्प्रूव असेंबली प्रोसेस, आई नीड टू इम्प्रूव पेंटिंग एज अ डिपार्टमेंट, आई नीड टू इम्प्रूव कोटिंग. या वेरी करेक्ट. क्रिटिकल टू प्रोसेस. ओके, क्रिटिकल टू प्रोसेस we have to find out. And in this case, why we say critical? Because मेरा critical defect इस process में generate हो रहा है. That word is critical process. And we don't have to say kind of every process critical. No, the defect making process critical process, because defect generating, very correct. And this defect has impact of that. Okay, so
दिस वी नीड टू रियली वर्क ऑन, देन गो टू द नेक्स्ट प्रोसेस. ये इंप्रूव होगा प्रोसेस में. फिर हमारे पास आता है कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी. मैं कोई प्रोजेक्ट लूंगा तो मुझे बताइए मेरी पुअर क्वालिटी कॉस्ट क्या है, और ये हमारा ROI में हेल्प करेगा, ये हमारी सेविंग बनेगा, राइट, एनुअलाइज सेविंग. सो वी नो हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी. 3 कंपोनेंट टू इट. कितने लाख की सेविंग है, हाउ मेनी 100,000. वन मोर गाइस जॉइनिंग. देन ये सारी चीजें आप प्रोजेक्ट चार्टर पे लिखो और साथ में एड ऑन करो. टीम मेंबर्स कौन से हैं, कब तक हम प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे, हमारे टारगेट टाइमलाइन क्या है, प्रोजेक्ट बिग वाई क्या था, टेक्निकल वाई प्रोजेक्ट क्या है, किस प्रोसेस पे हम काम कर रहे हैं, चैलेंजेस क्या है, ओके, क्रिटिकल क्या है प्रोजेक्ट में, सेविंग क्या है, और ये प्रोजेक्ट चार्टर साइन ऑफ हो जाएगा. सो आपका डिफाइन फेज यहाँ खत्म हो जाता है. इज इट करेक्ट? देन यू एंटर इनटू द मेजर फेज. सो डिफाइन फेज में फोकस क्या है, मैनेजमेंट प्रॉब्लम. उसका सिलेक्शन करेक्ट होना चाहिए, गलत डायरेक्शन में प्रोजेक्ट नहीं सिलेक्ट करना. दैट्स द होल आइडिया ऑफ. और नैरो डाउन कर लेना प्रॉब्लम को, ताकि ब्लैक बेल्ट को अपना प्रोजेक्ट मिल जाए. देखिए, ब्लैक बेल्ट का प्रोजेक्ट वो नहीं है जो कंपनी ने दिया है. ब्लैक बेल्ट को अपना प्रोजेक्ट खुद सिलेक्ट करना पड़ता है, टेक्निकल प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना पड़ता है. मैनेजमेंट तो प्रॉब्लम बताती है. जैसे डॉक्टर के बाद आप जाते हैं तो आप इफेक्ट या प्रॉब्लम बनाते हैं, सिम्टम बताते हैं, बट डॉक्टर को अपना डिसीज सिलेक्ट करना पड़ता है कि इसको वायरस है, बैक्टीरियल. आप कहोगे फीवर है, जैसे पेन एरिया, बट किस तरह का फीवर है, हेपेटाइटिस फीवर, जनरल फीवर, फ्लू फीवर, टुडे लाइक कोविड फीवर, व्हाट काइंड ऑफ. ये डॉक्टर का है कि मैं कौन सी टेक्निकल डिफेक्ट पे काम करूं. दैट्स द ब्लैक बेल्ट जॉब. सो बहुत सारी कंपनी में प्रोजेक्ट लिए हैं, बट ब्लैक बेल्ट प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाई नहीं किया. ओके, सो ये मेरे पास टेक्निकल वाई आ गया है. सो मेजर फेज में मैं कब जाऊंगा, जब मेरे पास टेक्निकल डिफेक्ट डेफिनेशन रेडी हो जाएगी. इज इट क्लियर अप टू हियर? सर डिफाइन फेज क्लियर है, हमें क्या करना है, कौन से टूल लगाने हैं, कितना काम करना है. और ये कुछ नहीं, इट कैन बी ए 1 डे जॉब. जिसके बाद डेटा नहीं है उसको 2 दिन लग सकते हैं, 3 दिन लग सकते हैं. क्या मनीष? Anybody wants to know define phase? Very clearly I have defined क्या किया हमने, क्या टूल लगाने हैं. कोई okay, so let's move into the measure phase. Okay, मेजर फेज में टेक वाई आपके पास रेडी है इस समय. जिसके बाद टेक वाई रेडी नहीं है वो एंटर नहीं कर सकता है, उसको मालूम ही नहीं मुझे किस डिफेक्ट पे काम करना है. नॉइज एक इफेक्ट है, बट मुझे वेरिंग नॉइज पे काम करना है. डिफेक्ट डेफिनेशन क्या है, पेंटिंग डिफेक्ट, रीवर्क एक, रिजेक्शंस हैं, बट पेंट में मुझे किस लैकर ओवरफ्लो डिफेक्ट पे काम करना है, कि मुझे डस्ट जो उसमें स्पॉट्स बन रहे हैं उस पर काम करना है. क्रिटिकल प्रोसेस क्या है, लैकरिंग प्रोसेस क्रिटिकल है कि पेंटिंग प्रोसेस, पाउडर कोटिंग प्रोसेस क्रिटिकल है, किस प्रोसेस का डिफेक्ट जनरेशन है. सो वी शुड नो दैट. इट्स अ वेरी बेसिक थिंग टू स्टार्ट. देन मेजर फेज में टेक वाई मिल गया मुझे, तो फिर मेरे को क्या करना है आपको मालूम है. अब यहाँ पे मेरे पास स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन ऑफ द प्रॉब्लम जनरेट होती है. सो सबसे पहले पूछना है क्या मेरा प्रोसेस स्टेबल है या नहीं है. सो एंड सेकेंड क्वेश्चन आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि मेरी प्रॉब्लम स्टेबिलिटी की है या कैपेबिलिटी की. ये 2 बेसिक डिस्कशंस आएंगे, जिसके लिए टूल्स भी हैं आपके पास. वन मोर गाइस जॉइनिंग. ओके, सो स्टेबिलिटी एंड कैपेबिलिटी का डिस्कशन आएंगे. तो इससे क्या फायदा होगा, स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम है अलग सॉल्यूशन अप्लाई करने पड़ेंगे, कैपेबिलिटी की प्रॉब्लम है अलग सॉल्यूशन अप्लाई करने पड़ेंगे फ्यूचर में. डिफेक्ट डेफिनेशन पे डिपेंड करता है, आपको नेचर ऑफ द टेक्निकल प्रॉब्लम पकड़ना है. स्टेबिलिटी प्रॉब्लम, कैपेबिलिटी प्रॉब्लम. इज इट राइट? ओके, देन टू आइडेंटिफाई स्टेबिलिटी you have these kind of tool, IMR tool, individual moving range, X bar R chart, Anderson Darling test लिखा है, but है ये क्या, normality test. We have normality test. And capability, we have 2 kind of potential capability and performance capability. These are 2 kind of capability we are talking about.
So we have two level of capabilities. The potential of performance capability clear है ना? Potential किस तरह का problem है? Anybody write on the chat window or can speak? What is potential capability? किसी की process में potential capability issue है, इसका मतलब क्या है? और performance capability issue है तो क्या है? What is the difference? A process having capability to achieve the target. Okay, yes. Process capability is about to achieve the target. Capability definition correct, yes, Manish. But what exactly is the difference? Sir, potential capability is कि हमारा जो प्रोसेस है वो उसकी उतनी पोटेंशियल है कि नहीं है कि वो हमें जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो दे सके. Yeah, Jay. Okay. हाँ, and basically dependable. Basically, it follows. Can you repeat? Yeah. Yeah, design will depend upon design. Exactly. Yeah. So basically, simple सा logic है. Potential, your design capability. Performance is your actual execution capability. जैसे एक कार का डिजाइन है कि वो इतनी माइलेज देगा 21, बट आप कैसे चला रहे हो तो 21 माइलेज आएगी या नहीं आएगी, इट्स अ डिफरेंट थिंग. और एक कार है जो 21 का माइलेज दे ही नहीं सकती, वो 10 का माइलेज दे रही है, तो आप कितना भी अच्छा चला लो उसको, यू नो. सो अगर डिजाइन कैपेबिलिटी इश्यू है तो आप ऑपरेटर शिफ्ट कंट्रोल कितना भी कर लो, यू कैन नॉट अचीव थ्रू दैट मेथड. बट अगर आपका डिजाइन कैपेबिलिटी हाई है तो परफॉर्मेंस में भी इश्यू हो सकते हैं. सेटिंग गलत कर दी किसी ने, पीछे से मटेरियल गलत आ गया, चेक ढंग से नहीं किया, सो देयर कैन बी परफॉर्मेंस इश्यूज. सो यू हैव टू काइंड ऑफ इश्यूज, यू हैव टू आइडेंटिफाई मैं किस तरह की प्रॉब्लम को डील कर रहा हूँ. एंड आपको मालूम है potential problem are seen from CP, CPK, and these are from PPVPK, performance capability. Then we have a Z goal. We can calculate. अच्छा, capability study क्यों करते हैं? To benchmark. What is the formula for benchmarking? Z score निकालने के लिए anybody knows? Capability को मुझे sigma level में convert करना है. What is the way? भाई नहीं तो मुझे benchmark sigma level से करना है. Correct, benchmark. Yes. Yeah, Mani, benchmark is correct. तो कैपेबिलिटी को बेंचमार्किंग में कैसे कन्वर्ट करेंगे? जी गोल, जी शॉर्ट टर्म, 3 times CPK. वेरी करेक्ट नीश. सो वी नो, अगर मुझे कैपेबिलिटी मालूम है, सो वो मेरी कैपेबिलिटी 1.33 है या मेरी कैपेबिलिटी 1.5 है, तो 3 times कर लो, सो आपको उतना जी स्कोर मिल जाएगा. ओके, 4.5 आपको मिल जाएगा. 4.5 सिग्मा लेवल पे हूँ और मैं जी गोल सेट कर सकता हूँ 1 सिग्मा अप. सो ये आपका बेंचमार्किंग के लिए यूज हो गया, वेयर आई स्टैंड. फिर आपके पास एक आपने एक्सरसाइज की है KPIV, KPOV के लिए, यू नो, लास्ट टाइम वी हैव डन दैट. सो वो प्रोसेस मैपिंग FME टूल यूज करके करिए, एंड यू हैव लिस्ट डाउन मल्टीपल causes and KPIV. So this is through process mapping. We have mapped the CTP completely, listed down all the causes. Now the list is available. फिर टीम ने बैठ के उसको रैंक किया होगा, प्रायोरिटाइज कर दिया है, उसको हम C&D मैट्रिक्स बोलते हैं. QFD से उठाया हमने अप्रोच, एंड C&D मैट्रिक्स में रैंक कर दिया टीम ने. रैंक करके कॉस्ट को लिस्ट डाउन कर लिया. मेरे टॉप 5 कॉजेज ये हैं विच आई हैव टू वर्क. अब मेरे पास कॉस्ट की लिस्ट रेडी है और KPIV की लिस्ट रेडी है. मेरा बेंचमार्किंग क्लियर है, मैं कहाँ हूँ, कहाँ जाना चाहता हूँ. मेरे को टेक्निकल प्रॉब्लम क्लियर है, मेरी स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम है, कैपेबिलिटी की प्रॉब्लम है. आई एम रेडी फॉर analyzing my problem, right? So this is the step we have to complete up to measure phase. And इसमें एक चीज मैंने अभी नहीं लिखी है, बट आपको मालूम है, वो MSA is optional. आपका अगर डेटा लेने में दिक्कत है तो आपको MSA स्टडी भी करनी है, जो हमने लास्ट टाइम कंप्लीट की थी. So then we can say there is a requirement of MSA also. अगर किसी को डेटा क्लियर नहीं है या नया कोई मेथड ऑफ मेजरमेंट ही इज पुटिंग अप, सो देन ही कैन यूज द MSA, whether attribute, whether variable. Okay, he can try that. So this is what we have done, D, M, and now we are entering with this flow. I'm just trying to make you a flow, right? I don't want to discuss anything in isolation. So हम लोग अब इस flow के साथ we are trying to enter into analysis phase. And now in the analysis phase,
the idea and fundamentals different than the D and M. यहाँ पे आपने देखा, अब लिखा आ गया y is equal to fx function. मैं इसका टर्म का मीनिंग क्लियर कर रहा हूँ और यहाँ से मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ एनालिसिस फेज को. बट बिफोर आई इंट्रोड्यूस एनालिसिस फेज, ये डिफाइन मेजर का जो हमने एक बिल्कुल क्रिस्प, शॉर्ट, कॉन्साइज रिव्यू किया है, ये क्लियर है ना सर? बस यही काम करना है आपको. जो हमने 15 मिनट में किया, हमने चाहे उसके लिए 3 महीने लगाए. दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, नथिंग एल्स. बाकी सब अंडरस्टैंडिंग लाने के लिए था, डिस्कशंस थे. सो किसी को कोई दिक्कत है ऑन डिफाइन एंड मेजर फेज? और इतना काम आपको प्रोजेक्ट में कंप्लीट करके एनालिसिस फेज में एंट्री करनी है. सो एनी टीम मेंबर who is having an inch of a doubt, a very small doubt, delta doubt, please ask. Because मैं यहाँ पे डिफाइन मेजर का गेट क्लोज कर रहा हूँ. मतलब लास्ट टाइम भी मैंने क्लोज कर दिया था, बट फ्लो बताने के लिए आई एम अगेन. और ये फ्लो के लिए आई विल यूज इन मल्टीपल टाइम, ओके? बिकॉज वी कैन नॉट लीव द प्रोजेक्ट फ्लो, कि हम लोग बढ़ कैसे रहे थे आज. इट्स अ मोमेंटम, करेक्ट? यू हैव टू फॉलो ए DMAC डिसिप्लिन, मोमेंटम. ओके, और हम प्रोजेक्ट में भी यही मोमेंटम देखेंगे रिव्यू के वक्त, है ना? इसलिए वी हैव पुट 3 days, Tuesday, Thursday, Friday. Every week we are going to sit. Either we'll have training, I will inform you it's a training schedule, or it's a project review schedule. But we are going to sit for this hours for every week, thrice a week, I can say like that. So हम आगे बढ़ें सर. Can anybody give green signal कि हाँ ठीक है सर, define major not an issue. ये हम लोग सारे प्रोजेक्ट को यहाँ तक लेके आ जाएंगे. और आप एक बार देख लेना, चेक कर लेना, रिव्यू कर लेना. और एनालिसिस फेज का आज हम यहाँ से स्टार्ट कर, किक ऑफ कर. ओके, so Vishal, yes, so it's fine, right? But I am literally saying, if anybody want to say, speak any word, utter any word, I have no issue. Okay, if you want to utter any words, say anything, don't worry about that. ठीक है ना? So you can add on to that. So should I proceed now? So let's enter into the analysis phase. So एक बार analysis phase का fundamental समझ लेते हैं. Once we understand the fundamental, then we are going to discuss on that. And then we'll take some 5 minutes, 10 minutes break. एक बार हम fundamental में enter कर लेते हैं. So what is the fundamental? Let's go and understand. Y is equal to fx. यहाँ से शुरू करते हैं हम. So ये y कौन सा y है, कोई बताएगा? Big Y है, Tech Y है? टेक वाई है, क्योंकि अब मेजर फेज क्रॉस हो गया. अब कोई वहां पे रिवर्क की बात नहीं करेगा. और डिफेक्ट को, अब मेरा टारगेट है, मेरे पास एक डिफेक्ट है सर, मुझे उसको 0 करना है. वेरी सिंपल. और हो सकता है 3 डिफेक्ट को 0 करके बिग वाई मेरा खत्म होगा, बट अभी एक डिफेक्ट पकड़ लिया, मेरे को उसको 0 करना ही करना है. दैट्स व्हाट द आइडिया इज. 0 डिफेक्ट प्रोसेस और 3.4 ppm और समथिंग. नाउ अब आता है सवाल, ये fx क्या है, फंक्शन ऑफ fx क्या है, इसका मतलब क्या है, y अचीव कैसे होगा? y इज डिलीवर्ड थ्रू सर्टेन इनपुट्स. वेरी करेक्ट. और ये इनपुट की लिस्ट आपके पास रेडी है? कोई बता सकता है रेडी है या नहीं है? यस, रेडी है विशाल. यस, मनीष, रेडी है? कैसे रेडी है? प्रोसेस मैपिंग करके रखी हुई है ना, प्रायोरिटाइज करके KPIV की लिस्ट. सो यहाँ KPIV की लिस्ट थी X है. This KPIV is X. यहां से जो आपका ये लिस्ट है KPIV, this is the basically X here. Yes. अब इसलिए जिसने मेजर का गेट क्लोज नहीं किया, वो एनालिसिस में उसको प्रॉब्लम आएगा, तकलीफ आएगा, राइट? क्योंकि आपने लिस्ट बनाया नहीं है, तो वो एनालिसिस में क्या लेके जाएगा, राइट? उसको टेक्निकल वाई नोन नहीं है, अभी वो इफेक्ट पे ही काम कर रहा है, उसको प्रॉब्लम ही समझ नहीं आया क्या है. सो ही कैन नॉट मूव हियर.
he has not technically identified the problem, he has not benchmarked मैं किस sigma level पे हूँ, 6 sigma project लिया है, sigma level ही नहीं मालूम, how he can move forward and so on. Then we move to the ये function हमें focus करना है. तो अब मैं देखो focus element देखो, big Y management related problem, define phase, tech Y major related technical problem for the black belt, analysis phase, relationship between Y and X. रिलेशनशिप बिटवीन वाई एंड एक्स, कौन से एक्स हैं जो मेरे डिफेक्ट को कंट्रीब्यूट करते हैं, दिस द रिलेशनशिप वी हैव टू सर्च. यहां भी आपने देखा एक और फनल आ गया सर. अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग फनल है. अभी तक आपने वाई का फनल देखा है, अभी एक्स का फनल, यू हैव टू गो इनटू द फनल ऑफ द एक्स. एक्स का भी फनल होता है सर. मैं एक्स वर्ड यूज कर सकता हूं ना सर, वी कैन यूज द वर्ड एक्स. KPIV's inputs are X. So X I am going to use. Sir, X का भी funnel होता है. What is the funnel of X? सबसे बड़ा funnel होता है potential causes, जो आपने यहाँ से list down किए. What is the definition of? मैं 3 cause definition discuss करना चाहता हूँ आपके साथ. Potential causes, probable causes, root cause. अभी एनालिसिस फेज का डिस्कशन है जो हमारा एजेंडा है आज का. सर ये 3 कॉजेस के ऊपर कोई लेट्स हैव डिबेट एंड डिस्कशन. वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट सम अंडरस्टैंडिंग. पोटेंशियल कॉजेस, प्रोबेबल कॉजेस, रूट कॉज. तो सबसे बड़ा जो फनल है, मुंह जिसका ओपन है, वो पोटेंशियल कॉजेस है. बीच में जो फनल है वो प्रोबेबल कॉज है, और जो बिल्कुल लोअर साइड है वो आपका रूट कॉज फनल है. So anybody can please have a discussion on this. यहाँ पे मैं थोड़ा पॉज ले रहा हूँ, मतलब I want to have some discussion. Because मैं इससे पहले आगे बढ़ूँ, I want to move forward. या भी थोड़े discussion point आ गए हैं. हाँ team, please tell potential causes. कुछ भी बोलो, मतलब please, है ना? Potential causes are the causes which can है. जैसे हमारा मेजर फेज में पता चला कि डिजाइन रिलेटेड कुछ इश्यूज है, जो डिजाइन में ही प्रॉब्लम है. तो वायबल कॉज जो है, जो जैसे प्रोसेस में या बाई एक्सपीरियंस हम देखते हैं कि इसके मल्टीपल कॉज हो सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के. क्यों जनरेट हो रहा है, डिफेक्ट ऑफ जनरेशन जो है उसके मल्टीपल कॉज हो सकते हैं जो बाई एक्सपीरियंस और डाउटफुल हो. और रूट कॉज जो है, जो हमें फाइनल पता चल जाए कि किसी एक डिफेक्ट जनरेशन का एक पर्टिकुलर रूट कॉज जो है, जिसको अगर हम क्लियर करें तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है. Go step by step. Potential, then probable, then root. probable and then root cause. हाँ एक एक करके बताओ, है ना? Slowly है ना? To grab things very slowly. Yes. So somebody is writing also, Vishal, what potential cause which can be causes of the defect. ठीक है, Vishal is writing like that. And probable cause? नहीं, आई थिंक मेरे ख्याल में पोटेंशियल कॉज वो होगा जिसमें हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट एजम्पशन है. यस. सो थिंकिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग से जो भी लिख लिया आपने, चाहे वो ठीक है गलत है, वो पोटेंशियल कॉज है. इज इट करेक्ट? सर आप कुछ भी लिखो, मैं कह रहा हूं आपने 30 कॉज लिख लिए, मैं उसको पोटेंशियल कॉज मानूंगा. ठीक है. प्रोबेबल कॉज है जिसके चांस होने के हैं, जो आपकी जिसके साथ नंबर एसोसिएटेड हो जाते हैं, चांस, हैपनिंग, प्रोबेबिलिटी. QFD मैट्रिक्स करेक्ट, जिसका आपने टीम बैठ के रैंक करता है. रैंक कॉज आर प्रोबेबल कॉज. किसी की रैंकिंग ज्यादा होगी, देखो सारे कॉज की एक वेटेज नहीं हो सकती. डू यू एग्री और नॉट? आई कैन नॉट गिव वेटेज फॉर एवरीथिंग सेम. Yeah, thinking based or design based potential cause, yes. Thinking based, correct, is the potential cause. And with ranking and probability numbers are the probable cause. But probability से भी कुछ नहीं होता. किसी की probability ज्यादा है, किसी की कम है. But वो तो analysis को लेने के लिए probability है. But actually वो root cause निकलेगा या नहीं निकलेगा. So what is the root cause? After validation come to know which are the impact. Okay, validation से root cause अभी
चलो अब रूट कॉज का डिस्कशन कर लेते हैं, बिकॉज पीपल आर राइटिंग ऑन द चैट रूट कॉज इज बेसिक रीजन ऑफ अनडिजायरेबल कंडीशन. रूट कॉज थोड़ा डिबेटेबल है. आई वांट टू डिस्कस फर्दर. ओके, इट्स नॉट दैट इजी टू नोटिस कॉज ऑफ द डिफेक्ट. सर कॉज ऑफ द डिफेक्ट तो सारे थे, पोटेंशियल कॉज भी था, प्रोबेबल कॉज भी थे. रूट कॉज कैसे बोलेंगे? अच्छा, ये दो फर्स्ट डेफिनेशन क्लियर हो गया. लेट मी गो वन बाय वन. पोटेंशियल कॉज इज थिंकिंग बेस्ड कॉज. दिमाग में जो आ रहा है लिख दो आप. करेक्ट, इनकरेक्ट, आई डोंट नो. प्रोबेबल कॉज इज रैंक कॉज विद द प्रोबेबिलिटी नंबर. चांसेस ऑफ हैपनिंग, किसी के ज्यादा हैं किसी के, वेटेज ऑफ कॉजेज. एंड व्हाट इज रूट कॉज? अब बात करते हैं रूट कॉज आप किसे कहते हैं. व्हाट इज कॉल्ड रूट एंड इट्स कॉज. कॉज ऑफ द डिफेक्ट, एक्चुअल कॉज, एक्चुअल वन आफ्टर वैलिडेशन. अच्छा, अभी ये बड़ा डिस्कशन आ रहा है कि वैलिडेशन से जो होगा वो रूट कॉज होगा. यू नो, एवरीबॉडी इज सेइंग, विशाल इज सेइंग, यू नो, हिमांशु इज सेइंग दिस. बट बिना वैलिडेशन के रूट कॉज कोई बता सकता है? एनालिसिस में अभी वैलिडेशन तो किया ही नहीं हमने. आई एम जस्ट पूछिंग, इज देयर एनी पॉसिबिलिटी? I'm just trying to find out. No. Okay, Arun is saying no. Any other guy? Part no as per specification. Part root cause can be eliminated. सर ये मत बताओ रूट कॉज के साथ क्या करना है, एलिमिनेट करना है, इंप्रूव कर. रूट कॉज इटसेल्फ इज व्हाट? आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड फर्स्ट. ऐसा समझ लेते हैं, रूट कॉज के साथ क्या करना है. We have to attack the root cause. We have to validate the root. अभी people are saying we have to validate the root cause. Which cause I have to validate? वो cause कहाँ से मिलेगा? That I have to validate this particular cause. I have to improve this particular cause. I have to eliminate. जो आपने language लिखी है मैं उसी को repeat कर रहा हूँ. I'm just reading from the chat window. Eliminate permanently. Which cause I have to eliminate permanently? Which causes the non-conformities? What you are saying? Which? Again, can you repeat, Narendra? Yeah. Which causes the non-conformities? जिससे मेरा डिफेक्ट बन रहा है. Okay. So अगर मैं YY करूं तो जो भी कॉज से आपका डिफेक्ट बन रहा है उससे फर्दर भी कॉज आ सकता है कोई. ये रूट कहां तक जाएगा? कोई एग्जांपल लेंगे आप? जैसे एक रूट कॉज बोलो तो हम उसके फर्दर भी जा सकते हैं क्या? कैन यू टेक ए मॉक एग्जांपल? आपने एक प्रॉब्लम लो, एक रूट कॉज बताओ और उसका फिर एनालिसिस करके देखते हैं. एनालिसिस मींस मॉक ट्रायल हियर. कि कॉज ऑफ ए नॉन कन्फर्मेंस क्या एक ही होगा, उसके ऊपर कोई कॉज नहीं हो सकता, या और फर्दर पेनिट्रेशन करके नहीं जा सकते? इज इट पॉसिबल? पॉसिबल. कैन नॉट गो फर्दर. तो ऐसा कोई कॉज मिलेगा जिसके फर्दर जाना इम्पॉसिबल है और वो फाइनल हमें रूट कॉज मिल गया? ऐसा कोई कॉज मिलेगा मनीष जिसका कैन नॉट गो फर्दर होगा? तो एक एग्जांपल ले लो. कोई तो आपने रूट सिक्स सिग्मा भी थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं. कोई ये प्रॉब्लम आई है, मैंने करेक्टिव एक्शन लिया, रूट कॉज एनालिसिस लिया, रूट कॉज पे एक्शन. उस रूट कॉज को आप बोल दो एक बार कि ये मेरी प्रॉब्लम थी, ये मेरा बिग वाई था, ये मेरा टेक वाई था, ये मैंने कॉज पे एक्शन लिया. सो मैं ये जानना चाह रहा हूँ उस कॉज पे फर्दर जाया जा सकता है नहीं? आई जस्ट वांटेड टू चेक, राइट? हैव ए चेक. कोई एग्जांपल लेंगे सर? कोई भी प्रॉब्लम पकड़ लो, सिक्स सिग्मा नहीं, एनी इशू आता था, आपका प्रॉब्लम आता था, आप करते रहते हैं ना, देयर सम इश्यूज गोइंग ऑन, कोई एक्शन लेते रहते हैं. सो वी आर गोइंग टू जस्ट चेक ऑन दैट कि to understand root cause. देखो with example only we can understand. I can share 100 example, but you may be correlating more with your own issues.
एक बार ये एनालिसिस का फंडामेंटल क्लियर हो जाए फिर हम 5 मिनट्स का ब्रेक ले लेंगे. बट कैन यू जस्ट शेयर, एनीबडी कैन शेयर वन एग्जांपल, ये मेरी एक प्रॉब्लम थी, ये मेरा रूट कॉज था. पकड़ लो, कोई इशू सर, डोंट वरी. अरे उस पे क्वेश्चनिंग नहीं होगा, डोंट वरी. आई एम सेइंग हम रूट कॉज की अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं. उस प्रॉब्लम से हाइपोथेटिकली ये मान लेंगे हम उसको. जैसे हमारी एक प्रॉब्लम थी कि एक टर्मिनल था जिसकी हमारी रिवेटिंग मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाती है. ठीक है. तो उसका फाइनल जो रूट कॉज निकला कि वो होने का रीजन क्या है कि वो टर्मिनल है वो चारों साइड से आइडेंटिकल है, स्क्वायर है, एंड जो उसका फिक्सचर है जिसमें हम लोग उसको प्लेस करते हैं वो किसी भी डायरेक्शन में हम उसको प्लेस कर सकते हैं. ओके, और इसलिए वो ओरिएंटेशन की चेंज कर देता था. इसलिए ओरिएंटेशन उसकी चेंज हो जाती है, मतलब उसके लिए कोई स्पेसिफिक वो नहीं है. तो रूट कॉज क्या निकला इसका फाइनल? रूट कॉज ये निकला सर कि इसकी हमारा ओरिएंटेशन हम लोग कैसे भी रख सकते हैं इसमें. तो ऑपरेटर उसको है ना मतलब एक साइड में होल है उसके, तो ऑपरेटर को ध्यान नहीं रहता तो वो दूसरी ओरिएंटेशन चेंज करके भी उसमें डाल सकता है आराम से. तो फाइनल एक्शन ये हुआ कि उसके होल के साइड में हमने एक पिन दे दी थी जिससे ऑपोजिट डायरेक्शन. आपने एक एक्शन ले लिया रूट कॉज को देख के, करेक्ट? हाँ. सब एक्शन वगैरह पे नहीं जाते, वी आर टॉकिंग अबाउट. अब इस पे क्या फर्दर क्वेश्चन नहीं हो सकता? फर्दर क्वेश्चन नहीं सर, मतलब ऑलमोस्ट लास्ट तक पहुंच गए थे हम लोग कि यही इसका रीजन है. चलो अभी कर लेते हैं. सर, व्हाई वी हैड दैट आइडेंटिकल वेयर फिक्सचर कैन नॉट आइडेंटिफाई, you know, so that wrong loading can happen. Why wrong loading can happen in the fixture? क्योंकि फिक्सचर में आपका आइडेंटिफिकेशन वो नहीं था, करेक्ट? Why there was no identification in the fixture? तो मैं बताते चलता हूँ, साथ में आंसर भी लेते चलते ना, मॉक है. देखो डिजाइन में कंसीडर ही नहीं किया था जब फिक्सचर डिजाइन बनाया था. बता रहा हूँ ना सर, मैं पता चलता. तो व्हाई यू आर नॉट कंसीडर ड्यूरिंग द पिक्चर डिजाइन? उस पे भी क्वेश्चन होगा ना जो आंसर मिला है. फेलियर मोड ना हुआ उसका, मतलब वो हम लोग कंसीडर नहीं किया फेलियर मोड, क्योंकि आपने उसको फेलियर मोड में कंसीडर नहीं किया. व्हाई यू आर नॉट कंसीडर फेलियर? बिकॉज़ डिजाइनर इज नॉट ट्रेन्ड. ऐसे करके कुछ भी मैं तो कहीं पे भी ले जा सकता हूँ, उसका कोई एंड नहीं है. और अगर बहुत ज्यादा दूर पे जाएंगे तो ह्यूमन पे आएगा, वो ह्यूमन ट्रेनिंग एंड कंसिडरेशन पे आएगा. दो चीजों पे चला जाएगा रूट कॉज अगर मैं अननेसेसरली पेनिट्रेट करूंगा, ह्यूमन एंड रिसोर्सेज. या तो मेरे पास रिसोर्स नहीं था या आदमी कैपेबल नहीं था, और ये दो चीजों पे रूट कॉज चला जाएगा. तो रूट कॉज तो फिक्स हो गया. फिर रूट इज फिक्स. ट्री की रूट फिक्स है, वो धरती में जाएंगे वही रूट मिलेगी. सो रूट कॉज का मीनिंग भी हम लोग समझ लेते हैं कि रूट, अच्छा रूट कॉज और कॉजेज दोनों हो सकता है. सेकंड डिस्कशन ये है, रूट कॉज इज वन और कैन बी कॉजेज आल्सो. कॉजेज आल्सो, कॉजेज, हाँ कॉजेज ये भी हो सकता है. कई जगह ये डिबेट है रूट कॉज तो एक ही होगा सर, मल्टीपल कॉज हो गया तो रूट कॉज नहीं हुआ, ये भी डिबेट चलता है. सो रूट कॉज इज मल्टीपल और सिंगल, देयर आल्सो वी हैव टू. सो पॉइंट ये नहीं है कि आपने कोई पकड़ा कॉज वो लास्ट तक फर्दर जा सकता है नहीं जा सकता. सो व्हाट इज दी कैन बी मल्टीपल. यस, मनीष इज राइट. यस. सो हम लोग ना ये रूट कॉज वर्ड यूज ही नहीं करते यार सिक्स सिग्मा में, बिकॉज ये क्लियर डेफिनेशन इंडस्ट्री में है ही नहीं. ये बड़ा कंफ्यूजिंग डेफिनेशन है, बट ये वाइडली यूज टर्म है इसलिए मैं यूज करता हूँ. एक्चुअली जो टर्म सिक्स सिग्मा यूज करता है वो ये टर्म है, सिग्निफिकेंट कॉज. ये टर्म यूज करना है आपको आगे से. जब भी मैं रूट कॉज बोलूंगा, बिकॉज ये पॉपुलर है, चलन है रूट कॉज बोलने का, तो मैं रूट कॉज बोल दूंगा. बट मैं जब भी रूट कॉज बोलूंगा आपको क्या समझना है? सिग्निफिकेंट कॉजेज. करेक्ट. अब आ जाते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिग्निफिकेंट कॉजेज. सिग्निफिकेंट कॉज वो होता है कॉज जो y इज इक्वल टू fx फंक्शन में, ये फंक्शन आपने लिखा था ना, उसमें ऐसा कॉज है जो हाईली इन्फ्लुएंशियल कॉज है, जिसका इन्फ्लुएंस ज्यादा है. देखिए रूट कॉज में कंट्रीब्यूशन थ्योरी इज इंपॉर्टेंट.
अब मैं रूट कॉज वर्सेस सिग्निफिकेंट कॉज थ्योरी पे जा रहा हूँ. रूट कॉज में कंट्रीब्यूशन इज मोर इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट कॉज में इन्फ्लुएंस एंड इंपॉर्टेंस इज मोर इंपॉर्टेंट. अगर मैं पैरेटो में कॉज का लिस्ट बनाऊं, सपोज मैं एक पैरेटो बना रहा हूं, करेक्ट, इफ आई मेक ए पैरेटो, और इसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, और एक छोटा सा कॉज है जिसका कंट्रीब्यूशन बहुत कम है बट उसका इन्फ्लुएंस ज्यादा है. इन्फ्लुएंस यू अंडरस्टैंड कि उसको है बहुत छोटा बट चाहे तो पूरे डिफेक्ट को चेंज कर सकता है, इतनी पावर है. इन्फ्लुएंस ज्यादा है, इंपॉर्टेंट बहुत है, बट अभी कंट्रीब्यूट कुछ नहीं कर रहा, चुपचाप बैठा हुआ है, बट उसको यूज करके मैं पूरे डिफेक्ट को जीरो कर सकता हूं. या ये कॉज, पहला कॉज भी इन्फ्लुएंसिंग कॉज हो सकता है जिसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है. सो कंट्रीब्यूटिंग कॉज भी सिग्निफिकेंट कॉज हो सकता है, नॉन कंट्रीब्यूटिंग कॉज भी सिग्निफिकेंट कॉज हो सकता है. सो मुझे रूट कॉज से कोई मतलब नहीं है, मुझे ऐसा कॉज बताओ जिससे वाई को इन्फ्लुएंस कर दूं मैं और मेरा डिफेक्ट जीरो हो जाए. सिग्निफिकेंट कॉज इज द इन्फ्लुएंसिंग कॉज. अब मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूं. आई वाज वर्किंग ऑन वन ऑफ द यूरोपियन प्लांट इन नियर ग्रीस, and they were having one problem to scan the barcode on a part. एक कन्वेयर है, उस कन्वेयर पे एक सिलेंड्रिकल पार्ट चलता है और वो सिलेंड्रिकल पार्ट इस कन्वेयर पे मूव होता है और सेंसर उसको सेंस करता है. लेजर बारकोड. सो कुछ पार्ट मिलियंस में बारकोड सेंस नहीं कर पाते, एंड बिकॉज ऑफ बारकोड नॉट सेंस द डेटा इज लॉस्ट. और वो बिकॉज इन द यूरोपियन साइड द रिक्वायरमेंट इज हर स्टेप पे जो भी इंफॉर्मेशन है उसकी स्पेसिफिकेशन, कितना उसके अंदर पार्ट में डोसिंग हुई, वो पार्ट में क्या टेम्परेचर था, प्रेशर था, एवरी डेटा गोज इनटू द सर्वर बेस्ड ऑन द ट्रेसेबिलिटी. अगर आपका वो बारकोड सेंस नहीं हुआ तो पार्ट चाहे ठीक बनाओ या गलत, वी डू नॉट नो, बट आपके पास जीरो इंफॉर्मेशन है अबाउट दैट पार्ट. सो इज इट ए डिफेक्ट और नॉट? पहले तो ये समझ लेते हैं. Please write, is it a defect not capturing the information about a product? ऐसे critical product अगर मार्केट में फेल हो गया, इसे critical, इसे catalyst in the exhaust में यूज होता है, ऐसे यूरोपियन नॉर्म प्रोडक्ट. Is it critical sir? सीधा पेनल्टी लगेगी, बिजनेस बंद हो सकता है. अगर आपको कोई प्रोडक्ट मार्केट में मिला, उसकी इंफॉर्मेशन आपके पास जीरो है बनाते समय इसकी क्या, और वो सब सर्वर पे हिट होती है इंफॉर्मेशन. So then defect is critical, correct? Now, what is the root cause they have done? Why barcode is not sensed? Because the part is vibrating. Why part is vibrating? Because the conveyor is vibrating. Why conveyor is vibrating? Because conveyor is old and the bearings are old. Bearing का wear out हो गया है. So to change the bearing, there is a 20 lakhs rupees cost on that conveyor line. अब मैनेजमेंट ने पता है क्या बोला? मिलियन में एक आध पार्ट सेंस नहीं हो रहा, उसके 20 लाख रुपए खर्च कर रहे हो, पूरी कन्वेयर चेंज करा रहे हैं. दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन. अब क्या करोगे सर? आप रूट कॉज नोन है. मैं रूट कॉज मतलब कंट्रीब्यूटिंग कॉज. व्हाट कंट्रीब्यूट टू सेंसिंग ऑफ द नॉन सेंसिंग ऑफ द बारकोड. Now we have analyzed, सर ये रूट कॉज एनालिसिस है यहां तक. सिक्स सिग्मा एनालिसिस क्या है? y is equal to fx function. y is equal to fx मतलब to sense a part, what are the x responsible? One is conveyor vibration, okay. Second is, सर कोई बता सकते हैं किसी चीज को सेंस करने के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिकली और समथिंग, और component of sensing? Anybody can tell? Just ऐसे ही, to सेंसर होना चाहिए. सेंसिंग सही, सेंसर ठीक होना चाहिए. फिर कैमरे का एंगल जो सेंस कर रहा है, विजन कैमरे का एंगल सही होना चाहिए. तो उसने मल्टीपल चीजें लिखी, करेक्ट. एंड कैन यू बिलीव दैट वन गाय सजेस्टेड कि सर एक कॉज है जो पूरी सिचुएशन को चेंज कर सकता है, इसका इतना इन्फ्लुएंस है, बट वो रूट कॉज नहीं है. मैं कहा बताओ कौन सा है? वो कह रहा विजन कैमरा एंगल. अगर मेरा जो रीडिंग एंगल है वो मेरा एक्स थीटा है, वो अगर वाई थीटा हो जाए, सो आई कैन
basically sense even a part. So there is a big role of a vision camera angle. It's also one of the X1, X2, X3. Correct? It's influencing cause. It is not the contributing cause. So हमने experiment किए और कैमरे के एंगल को चेंज किया, वाइडर कैमरा एंगल को चेंज कर दिया. Can you believe now every part gets sensed? There is a zero defect. And what is the cost of just adding one camera angle and this is say 3,000 rupees cost. अब ये सवाल आता है, क्या कैमरा एंगल रूट कॉज था प्रॉब्लम का? Please write, what do you say? Yes or no? Please write. क्या कैमरा एंगल रूट कॉज था प्रॉब्लम का? Can you write in a chat window? Or anybody can speak. No, root cause नहीं था. Yeah, Manish. यार नहीं था. बट उसने इन्फ्लुएंस कर दिया डिफेक्ट को. वो इन्फ्लुएंसिंग कॉज था, इंपॉर्टेंट कॉज था. ऐसे इन्फ्लुएंसिंग इंपॉर्टेंट कॉज को हम सिग्निफिकेंट कॉज बोलते हैं. हो सकता है कंट्रीब्यूटिंग कॉज भी सिग्निफिकेंट कॉज हो, वो भी इन्फ्लुएंस कर सकता है. लेकिन साथ में एक डेफिनेशन और ऐड कर लो, इन्फ्लुएंसिंग कॉज, इंपॉर्टेंट कॉज ऑन विच बिजनेस एक्शन इज पॉसिबल, जिस पे हम बिजनेस एक्शन ले सकते हैं. मैं कैमरा एंगल पे एक्शन ले सकता हूं, बट पूरी कन्वेयर, पूरी कंपनी की एक लाइन को चेंज नहीं कर सकता कन्वेयर लाइन. तो मुझे ऐसा कॉस्ट पकड़ना है जिसपे बिजनेस एक्शन इज पॉसिबल. मैं जब कल रिकमेंड करूंगा मुझे इस एक्शन लेना है इस कॉस्ट पे, तो मैनेजमेंट एक्शन लेने को तैयार भी हो जाए. मैं ऐसा कॉस्ट तो नहीं बता सकता पूरी नई लाइन डाल दो आप, और मैंने एनालिसिस किया सिक्स सिग्मा में, या चेंज दी प्लांट, बाय 1 crore न्यू मशीन, then it is not a root cause analysis, right?